quickly cut across to Sharad Pawar addressing the media there, NCP chief, on these allegations. We will brief you tomorrow, that is today. So, it's correct, no? Yes, sir. Yes, sir. Now, I tried to collect the information about exactly the allegation which was made by former CP against Home Minister. And whatever the period which he said, what exactly happened in that period, that also I tried to collect information. If you see the former commissioner's letter, he mentioned in mid-February he was briefed by certain officers that they got such and such instruction from Home Minister. Correct? Yes. Yes. Now I got a documentary evidence from 5th February to 15th February. Mr. Deshmukh was admitted in the hospital because of the corona. And I got the hospital from Nagpur, Alexis, Alexis, Alexis is the name of hospital, and this hospital has given certificate later. This is to certify that Mr. Anil Deshmukh, aged 70 years, was admitted in the Alexis multi-specialist hospital in Nagpur under my care from 5th February to 15th February for mild COVID-19 illness. So going to main issue, there is a clear-cut information, there is a record that Mr. Deshmukh was hospitalized, and it is also certified by hospital. Secondly, he was discharged on 15th of February and advised from 15th February to 27th February for house quarantine. In that period, he was house quarantined. These 2 days I am deliberately giving. Because former CP's letter, he suggested regarding collection of money, fund, everything. The Honorable Home Minister, around the mid-February, calls Sri Vadhe at his official residence and some instructions were given. So it is absolutely clear Mr. Deshmukh was in Nagpur in this particular hospital. Now, second issue is what CP is saying, he was briefed same day by that low-level officer, such and such conversation was between him and Home Minister. Same day, he mentioned same day, Vijay was briefed by, so-called briefed by Home Minister, same day, that is former CP's version. Now another issue which I just think this is not anybody raised, is that March 3rd week or 2nd week, he mentioned in his letter he has briefed CM, Deputy CM and me.
And I said it is correct that he met me. I don't know about CM and Deputy CM. I asked them, they said yes, but he met me, that is more important. So this was in second week of March. See, suppose in May, February, CP got this type of information. So while he was waiting up to second week of March for whole month, this is an important issue. It was his duty, at least he should say something in writing. At least it was his duty to register such and such things to certain record. But that is not done. He has disclosed all these things when he was about to transfer and he transfers. But all these things, I am not going in detail, it's not my job. Ultimately, whoever will inquire, they will go in detail. Yesterday I also suggested, for sake of inquiry, somebody should be senior most officer and whose reputation is above all should take this responsibility. And I suggested, this is suggestion. I have not discussed, I also said I have not talked. Name of C. Rivero, but Rivero has taken public stand. He is not going to take any responsibility so that it is not there. Now for me, important issue is whatever this conversation, allegation, everything, that Hussein will invest, that will come what is the truth. But from my side, what I understood is, important issue is what was the main case? Main case was certain items were kept in particular vehicle, somewhat near to house of C. Ambani. Then, of course, police must have started investigating who has kept this vehicle, who owns this vehicle. And it looks like that they come to conclusion, or at least they got the information, may not be conclusion, but information, this particular jeep was in the custody of one deceased Syrian. And one fine morning we read the Syrian was assassinated. Now the investigation might have started. What was the role of Syrian in this jeep? Is it correct that this was with him for many months? Is it correct that this was taken from him by some police officer? And one fine morning we read, Hiren is no more. Now, ATS Bombay has yesterday or today announced they have arrested 2 persons. In connection with assassination of Hiren. So I think एक तो बात साफ हो रही है कि हिरेन की हत्या किसने की। हिरेन की हत्या करने वाले पुलिस को, एटीएस को जो लगते हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया। अभी बात आएगी आगे इन्वेस्टिगेशन में कि why he has done this, these 2 gentlemen has done this, whether somebody has told him. That is in investigation process, facts will come
today, tomorrow, day after tomorrow, can't say, but something will happen. But I am happy about one thing. The main case was not the allegation or anything from CP. Main case was certain material near Mr. Ambani's house, A, that was kept in Jeep, B, then the Jeep for the custody of so and so, C, and ultimately the Jeep who was claiming he was the owner of on his possession, he was assassinated, and ATS Bombay had reached and arrested those who are involved in assassination. So, real case was that, and I think Bombay ATS is going on correct direction. So just to divert this entire investigation, while some people might be saying about something happened between him and Home Minister was asking such and such thing. When they made a statement, the Home Minister was asking, is there any reason, is there any actually cash transaction was given, any allegation? Just vague allegation has been made, and I honestly feel the investigation which is reaching at pinpoint, there was effort to divert that investigation, and now the truth is coming. Now you can ask if you want it. Decide on the fate of the Home Minister. So is the meeting to be held today? Any decision that you will be arriving at today? Since yesterday you said that today you will be... Yes, in fact, when we got all this information, when we got that Mr. Deshmukh was hospitalized, and that's why the allegation was made exactly in the same place. And when he was in hospital, it established there is a hospital certificate, and all government record also says that entire 3 weeks he was not in Bombay. He was in Nagpur, that is his hometown. And that's why in such situation question doesn't arise. केंद्र सरकार कह रही है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं प्रकाश जावड़ेकर और केंद्र सरकार। सदन में हंगामा हो रहा है, तो क्या आप अनिल देशमुख के लिए वाउच करेंगे सर कि वो पाक साफ है और इसमें कोई सरकार का मंत्री लिप्त नहीं है? मैंने सीधी बात कल भी कही थी कि सरकार के ऊपर कुछ असर नहीं होगा। एक दूसरी बात, जिन मिनिस्टर के बारे में एलिगेशन था, ये एलिगेशन जिस मिनिस्टर के बारे में था, इस मिनिस्टर की उस समय की स्थिति क्या होती ये साफ हो गया है, और ऐसे परिस्थिति में उनको इस्तीफा मांगना, because yesterday I myself said it looks like a serious thing, but when I saw all the documents, I saw all the program, and I am convinced that this particular case he was in Nagpur, so question doesn't arise. I am convinced that this particular case he was in Nagpur, so question doesn't arise. दबाव टाकण्यात येत आहे का अशा पद्धतीने पत्र लीक करून महाराष्ट्र सरकार किंवा गृहमंत्र्यांना अडचणी टाकणं, सरकारला अडचणी टाकणं हे केलं जाते का राजकीय षडयंत्र वाटते? इसे बेसिकली जो कुछ लिखा गया, जो फॉल्स एलिगेशन या क्रॉस एलिगेशन जो किए इस बारे में, अल्टीमेटली मैंने कल कहा था कि इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द चीफ मिनिस्टर to इन्वेस्टिगेट करना तो इन्वेस्टिगेट करो, कुछ एक्शन लेना है या कुछ एक्शन ले लो, जो कुछ करना है वो कर सकते हैं, ये मेरा काम नहीं। बीजेपी ये भी कह रही है कि अगर जब तक इन्वेस्टिगेशन होती है, फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, तब तक अनिल देशमुख को स्टेप डाउन करना चाहिए, क्योंकि उनके होम मिनिस्टर रहते एक फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन कैसे हो सकती है? सीधी बात ये साफ हो गई कि जिस समय में ये एलिगेशन किया था वो फिर अनिल देशमुख हॉस्पिटलाइज थे। ये बात साफ होने के बाद
ऐसे जो कुछ डिमांड है, इस डिमांड को कोई ताकद नहीं रही। सर शिवसेना का कहना है सर तुम्ही अर्ध सत्य सांगत आहात, तुम्ही पूर्ण सत्य सांगत नाही. इतकंच नाही तर देवेंद्र फडणवीस यांनी आरोप केलाय की याआधी पण 2 पोलीस अधिकाऱ्यांनी रिपोर्ट दिले, ते आपण लपवत आहात. हे तुमच्यावरच आरोप केलाय. नहीं, माझा त्याच्यात म्हणजे माझं भाग्य है कि उन्होंने मैं इस्तीफा ऐसे नहीं कहा। उन्होंने जो कहा ये हाफ सच है, ये बात करेक्ट नहीं। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास कल थी मैंने दी, आज इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ गई, वो भी आ गई। मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे सेंसिटिव इशू पर जहाँ इन्वेस्टिगेशन चालू है, इसमें ज्यादा हम लोगों ने बोलना ये ठीक बात नहीं। सर शिवसेना का कहना है, सर शिवसेना का कहना है परमवीर सिंह जो हैं वो बीजेपी के आदमी हैं और उन्होंने एलिगेशन लगाया है। एनसीपी का इस पर क्या कहना है, रिएक्शन? दूसरा आपका क्या अभी तक सीएम साहब से कुछ बातचीत हुई है? सीएम साहब अभी तक क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? ये कुछ पार्टी में थे या कोई है या मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। आपका कोई रिएक्शन नहीं है? एनसीपी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है? क्योंकि परमवीर सिंह के इशू भाई मैंने कभी देखा ना, मैं उनको कई सालों से देखता था, इनके बारे में कुछ बातें इधर सुनने के लिए आती थी, मगर ये पॉलिटिकल पार्टी में है ऐसे मैंने कभी देखा नहीं। इस दौरान आपने कहा कि मुझे डॉक्यूमेंट मिल गए और अब मुझे कंफर्म है कि वो नागपुर में थे। इस सारे संबंध में क्या उद्धव ठाकरे साहब से आपकी बातचीत हो रही है? खुद मुख्यमंत्री है, एलिगेशन उन्हीं पे लग रहा है, महाराष्ट्र की सरकार चल रही है, क्या उससे कोई बातचीत होगी? मैंने कल ही उनसे बात की तो मैंने आपको कहा था कि तो सर अभी तक सुनिए एक बार पूरे होने दो। मैंने उनसे बात की थी और उनको अभी जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो भी उनके पास हम भेजेंगे और उनके सामने सच्चाई आई भी हो सकती है इससे पहले, वो मुझे मालूम है। पवार सर इस्तीफा नहीं देंगे, ये तय है। नहीं, सवाल है कि जो एलिगेशन किया है ये एलिगेशन में सच्चाई नहीं। एलिगेशन का जो समय है वो समय में वो नहीं थे मुंबई में, वो नागपुर में हॉस्पिटल थे। ये बात साफ होने के बाद फिर इसमें और कोई एक्सपेक्ट करना ठीक नहीं। इन्वेस्टिगेशन नहीं होने की जरूरत है सर, कोई इन्वेस्टिगेशन कराने की जरूरत नहीं है आपको लगता है? सर एक जैसे आप कह रहे हैं कि देशमुख साहब हॉस्पिटल में थे, कोविड हुआ था उन्हें, तो क्या एनसीपी अनिल देशमुख को क्लीन चिट दे रही है? दूसरा सवाल ये कि अगर जांच चल रही है और गृह मंत्री वो बने रहेंगे तो जांच भी तो प्रभावित हो सकती है सर। ये जो बात जांच है, अभी जांच की बात इस बारे में तय करना है सीएम साहब को। मैंने कल भी कहा था अभी जांच एक्चुअली शुरू नहीं। कल जो आपने या कल सीरियस कुछ एलिगेशन करने के बाद मैंने खुद सुझाव दिया था रिवर वैसे आदमी ने इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, मगर ये बात जब साफ हो गई सामने कि जो समय उस समय वो नहीं थे, ये बात साफ होने के बाद फिर जांच करना या न करना हमारी अभी डिमांड नहीं है, मगर डिमांड वो सीएम साहब को हो सकती है तो उनका अधिकार है। गृहमंत्री पदावरती असताना अनिल देशमुख यांची चौकशी कशी करतायत? अनिल देशमुख यांचा राजीनामा घ्यायला हवा। नाही, पॉईंट आता चौकशीचा इश्यू कुठं आला की जे एलिगेशन होतं तेच खरं नाही हे सिद्ध दिसतंय आता। एक सीरियस एलिगेशन भी आपने लगाया है कि एटीएस की प्रोब राइट डायरेक्शन में जा रही थी और शायद कहीं और नाम सामने आते, इसीलिए जो है डाइवर्ट किया गया। अभी अगर उसमें पहला केस देखा जाए जब एक्सप्लोजिव मिले थे उस केस में भी अब तक कुछ नहीं हुआ है। तो सर क्या आपको लगता है कि जस्ट टू डाइवर्ट दी अटेंशन ये किया गया है, चाहे जेलेटिन स्टिक्स वाला हो अंबानी के घर के बाहर और चाहे मनसुख हिरेन की मौत का मामला हो? सर मालूम नहीं, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में मेरा एटीएस पर भरोसा है। एटीएस जो कोई सच्चाई है वो सामने निकलेगी। ऐसे समय मेरे जैसे लोगों ने कुछ कमेंट करना ये ठीक नहीं कि जिसका गलत असर इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस पर होगा, और इसलिए इस बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। कमलनाथ आपल्याला काय भेटले? काँग्रेस बरोबर आपली कौन भेटले? आलेले आपल्याला भेटायला कमलनाथ काँग्रेसचे नेते। नहीं, ते दुसऱ्या कामात ऐसा काही संबंध नाही। कमलनाथची या प्रश्नावर चर्चा सुद्धा झाली नाही, त्यांचं कारण नाही। मध्य प्रदेशमधल्या काही प्रश्नासाठी ते माझ्याकडे आले नाही, कोणाची चर्चा नाही।
परमवीर सिंग यांच्या पत्राचा मुद्दा जर आपण बाजूला ठेवला तरीही अनिल देशमुख हे गृहमंत्री असताना सचिन वाझे आणि इतरही पोलीस अधिकाऱ्यांचा त्या जिलेटिनच्या कारमध्ये इन्व्हॉल्वमेंट आहे. याची नैतिक जबाबदारी अनिल देशमुखांनी स्वीकारावी असं नाही वाटत का? त्यांचा पोलीस खात्यावरती वचन नाही असं माझ्या वाटतं? मते याची जबाबदारी ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बघतो त्याची आहे. पवार सर आपकी पार्टी में दो स्टैंडर्ड है. त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की अनिल परब ज्या प्रकारे पवार सर, आपकी पार्टी में दो स्टैंडर्ड है. आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पे जिम्मेदारी सौंपी. आपके तमाम जो नेता, कल जयंत पाटिल ने भी कहा कि इस्तीफा नहीं होगा. तो एनसीपी के अंदर दो स्टैंड क्यों? राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आज मैं वही कह रहा हूँ. कल क्योंकि वो मुंबई से अरे सुनिए, कल वो कह रहे थे, मैं आज कल नहीं कह सकता, आज मैं कह रहा हूँ क्योंकि जयंत पाटिल मुंबई से आए थे, उनके पास ज्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन थी. यह वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं थी और इसलिए मैंने कल ये सीरियस इशू है और इसलिए इस बारे में मैंने कुछ कहा नहीं था. मैं आज आई एम एब्सोल्युटली clear after getting information of Nagpur hospital, allegation which is made against Mr. Deshmukh is not correct. सर, मीटिंग तो 4 मार्च को हुआ था. इस्तीफा नहीं होगा सर. कि जिसमें भुजबल थे, पाटिल थे और सब लोग थे. 4 मार्च का मीटिंग जो लेटर है हाँ, जो परमवीर सिंह ने लिखा है उसमें 4 मार्च को मीटिंग हुई थी और वो 27 तारीख को meeting on 4th of March. And then he said, he mentioned in sir, there are two references mid-February. from the letter. He mentioned mid-February, same day, concerned officer briefed him that he has said from mid-February till 16 March तक वो चुप क्यों बैठे थे? सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही थी. उन्होंने लेटर पे इतनी सारी बातें लिखी. उन्होंने ये भी लिखा है that I went to the chief minister on a certain evening at Varsa. I briefed him about what was going on. He says he briefed you as well. I want to ask you, Pawar sir, that if he came and he spoke to you, maybe you may not want to share what he told you, but did you make the effort to call the Home Minister, check with him what's going on? And you have agreed to the fact that he came and met you, sir. What did you do after that? Exactly. He mentioned same thing to me also. I don't hide. Okay. Then CP has briefed me also. He made allegation also. And definitely, whatever the time schedule which he has given and factual information as on today, there is a vast difference. And that's why question doesn't arise to take anything about Mr. Deshmukh. about the political conspiracy. क्या आपको लगता है ये पूरा मसला जो है सियासी साजिश का है? क्योंकि आपने कहा कि बार बार मामले को भटकाने की कोशिश हो रही है. महाराष्ट्र आघाड़ी सरकार एक तरह से चुनौती है नरेंद्र मोदी सरकार के लिए भी बड़ी. तो क्या कहीं मैंने कल कहा था कि लीडर ऑफ द अपोजिशन और इन लोगों ने कुछ स्टेटमेंट किए या कुछ डिमांड की. अपोजिशन का नेता का ये काम है. इस बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता हूँ. ये कल मैंने कहा था, आज भी मेरा कहना वही है. राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी ते प्रामुख्याने सतत वारंवार करतात. आज प्रकाश आंबेडकर सर राजभवनावर जाऊन राष्ट्रपती राजवटीची मागणी केली. साधारणतः ज्यांच्या पाठीशी लोक आहेत, संसदेत लोक आहेत, विधानसभेत लोक आहेत, अशांची वर्तता साधारणतः आम्ही कॉग्निशन घेतो. पवार साहब जो अभी सवाल पूछेंगे मौसमी, मैं सर ये पूछना चाहता हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि जो मेन इन्वेस्टिगेशन है उससे डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है इस तरह के एलिगेशन लगा के. सर, ये परमवीर किसके बेहस पे कर रहे हैं? मैं जानता नहीं क्योंकि मेरे पास कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं. That's why I will not make any wild allegation unless I got something. पवार साहब, सर आपने जो हॉस्पिटल में एडमिट होने की बात बताई देशमुख साहब से, लेकिन 15 तारीख को उन्हें फिट टू फ्लाई का सर्टिफिकेट जो है हॉस्पिटल की तरफ से मिल गया था. तो क्या इस बात के लिए भी आप श्योर हैं कि 16 तारीख के बाद भी उनकी मुलाकात नहीं हुई है या आपकी बात हुई है? कि मुलाकात हुई क्या नहीं, ये मैं जानता नहीं हूँ. अगर जो कुछ एलिगेशन थे उसका समय और फैक्चुअल स्थिति में फर्क है. और दूसरी बात ये है कि मेन इशू दूसरा है. मेन इशू ये नहीं है. मेन इशू अंबानी के सामने कुछ बातें रखी गई. इसमें इन्वॉल्व होने वाले कौन लोग थे, ये किसकी साजिश थी, ये मेन इशू है. ये मेन इशू में
ऐसे कुछ नाम आ रहे कि जिसकी डिटेल इंक्वायरी होने की आवश्यकता है। आप लोगों ने, आप टेलीविजन ने ये दिखाई कि वो जीप से कौन उतरता है, कौन जाता है, कौन बैठता है, किसी गाड़ी जीप से जाने के बाद कौन से गाड़ी से गए, वो इनोवा किसकी थी, ये सब बातें आप लोगों ने दिखाई। मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। और ये सब देखने के बाद डेफिनेटली मेन इन्वेस्टिगेशन एटीएस कर रही है। शायद जो जिनको पसंद नहीं वो लोग डाइवर्ट करने की कुछ कोशिश कर रहे थे, इस तरह की आशंका पैदा हो सकती है। आपका कहना ऐसा है परमवीर सिंह की तरफ ये पूरी जांच जो है परमवीर सिंह की तरफ जा रही थी, इसलिए परमवीर सिंह ने ये किया, आपका कहना ऐसा है? मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है किसी